Hello everyone. In this session, we are going to deal with a poem that has been given in your NCERT textbook. The title of the poem being Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrian Rich. And in this particular session, we are going to deal with the line by line explanation of the poem itself, various poetic devices that have been incorporated in the poem, and along with that, we are also going to deal with various themes that the poem explores, and uh, some few question answers discussed will be discussed in this through this session. So let's begin. First of all, you can have a look at today's goals. First is poet introduction. We will be knowing a little about the poet herself, Adrian Rich, and another topic, another goal for today is text explanation and explanation of the entire poem lines, every single line of the poem, a line by line explanation of the poem itself, and various poetic devices, है ना. तो poetic devices that have been incorporated in the poem, that have been used, and few question answer discussion. So let's begin with the poet introduction first. Adrian Rich. Born in the year 1929 in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. So she is known, she has been very vocal about these rarely spoken topics like women's movement, women empowerment, and uh, she she is very vocal about it, and she talks at length about these topics in her literary pieces, in her literary works. And then she has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. So besides poetry writing, she also explores other forms of literary writing, that is essays and other forms of writings. And a strong resistance to racism and militarism echoes through her work. Another important aspect about her writings is that she speaks at length. She talks about racism and militarism. So there are two new terms that have been introduced over here, that is racism and militarism. First of all, what is racism? Racism, it is a social belief that a particular race is superior to another, and it can be on the basis of any given aspect. For example, from the ethnic and cultural backgrounds that people come from, कि कौन से ethnic background से culture से लोग आ रहे हैं, या फिर उनकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, फेथ क्या है, बिलीफ क्या है, वर्शिप किस चीज़ में वो बिलीफ रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो उसके बेसिस पे जो आइडियोलॉजीज़ जो लोग प्रोपेगेट करते हैं लाइफ में, और उसके बेसिस पे अगर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, तो जैसे कि कोई मतलब इम्पोज कर रहा है, खुद को सुपीरियर दिखा रहा है इन कंपैरिजन टू अनदर रेस on the basis of these parameters, so it is racism. You might have read about it earlier in your in an autobiographical excerpt of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. And in that excerpt, you might have read about the policy of apartheid. What was apartheid? That people during colonial times, when Britishers they set up colonies on in various nations across the globe, तो वहाँ पे जब वो कॉलोनीज़ बनाते थे, तो वहाँ पे जो वो लोगों के साथ
ऐसा ही ट्रीट करते थे, मतलब एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, यू नो, द टोन of their skin, which is quite strange, quite absurd, because skin complexion of anyone, it is merely a biological factor. और उसकी बेसिस पे अगर discriminatory practices हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा superficial, इससे ज़्यादा shallow mindset हो ही नहीं सकती. और that people being made to feel superior or inferior for that matter on the basis of these aspects is quite unacceptable, and it is absurd, you know. तो ये है racism. And another term which has been introduced over here is militarism. What is militarism? In this, any particular nation, for example, um, is made to maintain a very strong military force, some robust artillery wing, you know, and that is done that is done for creating terror, in order to create anxiety amongst the minds of other nations, you know. So they are obligated to maintain a strong military force so that the other nation can be terrorized, you know. So that type of policy which is being practiced means nations, they are in possession of weapons of mass destruction, the weapons which have great potential to destroy nations, you know. And that kind of practice is known as militarism. So these are the topics that Adrienne Rich mostly touches upon in her literary works. And coming back to the poem, what the poem actually is talking about, let us see. In this particular poem, she addresses the constraints of the married life, of constraints, the constant challenges that a woman has to undergo in her married life, in her marital household. So that is spoken at length, that is being talked about in this particular poetic piece. And so now we are going to get a line by line explanation of the poem. First and foremost, let us have a look of the various themes that the poem explores. So let us see the themes. First of all, first theme that the poem explores is themes of oppression. Oppression. Who undergoes oppression? A woman is being oppressed in her marital household. And another theme that the poem explores, touches upon, is limitations. Limitations being imposed on a woman ठीक है. Third theme that the poem speaks of is patriarchy. Patriarchy, what is patriarchy? It is male dominance in a society, like male supremacy, you know. And it comes from a belief that male is the provider and is all in all in a given social setup. And another theme is male, you can say male chauvinism, you know. Male chauvinism
Chauvinism, quite familiar with the term. If it rings a bell, we have read about it in a linguistic chauvinism. There was a term in the chapter, the last lesson, which happens to be the very first lesson of your English textbook, ironically. So in that there was linguistic chauvinism, in which German was imposed in the French districts of Alsace and Lorraine. So in that was linguistic chauvinism. वो linguistic chauvinism था. इसका मतलब कि जो फ्रेंच जो जर्मन लैंग्वेज है उसको वो कहीं ना कहीं सुपीरियर दिखाना चाह रहे थे इन कंपैरिजन टू द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना, जो फ्रेंच है. तो इसी तरह मेल शॉविनिज़म क्या हो गया कि इसमें है कि जो मेल है, जो जेंडर है, इनको मतलब सुपीरियर दिखाया जाता है. तो ये एक मतलब एक बिलीफ है ना कि मेल जो है वो सुपीरियर रेस है. और ये जो बिलीफ है इसको हम कह सकते हैं कि ये मेल शॉविनिज़म है. तो इसमें आर्न जेनिफर जो है ना हमारी, ये इसकी विक्टिम बनी हुई है मेल शॉविनिज़म की, पेट्रियार्की की. उन पे लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस मतलब उनके कुछ सीमाएं हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनके लाइफ में, है ना, चैलेंजेस हैं जो उनको ऑन अ डेली बेसिस जो उनको अपने लाइफ में उनको झेलना पड़ता है ना. तो इसके बारे में है. और इसमें और भी थीम्स हैं जो कि मतलब एक इम्प्लिसिट वे में दिखाया गया है कि जो आर्न जेनिफर के जो मतलब जो अनअटेनेबल हैं उनके लाइफ में, जो वो चाहती हैं अटेन करना, वो अटेन कर नहीं पा रही. तो वो थीम को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, जैसे कि फ्रीडम और स्ट्रेंथ का. तो उसको वो दिखाएंगी अपने आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू. ठीक है, तो फ्रीडम का और स्ट्रेंथ का कह सकते हैं थीम एक्सप्लोर किया गया है पोएम में. ठीक है, और इसके अलावा अगर और भी थीम्स की बात करें तो इसमें फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इटसेल्फ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टैंजा here, the very first line, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. So Aunt Jennifer's tigers, so there are some tigers of Aunt Jennifer that is being referred to over here. So they are, what are they doing? They are prancing. So prancing जो word है इसका meaning होता है to leap, है ना, to लीप, टू जंप फॉर एग्जाम्पल, जो एक मोशन के साथ हो रहा है. ठीक है, तो सो आर्न जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर लीपिंग, दे आर जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन. सो स्क्रीन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ तो इट इज़ मेड वेरी क्लियर कि ये जो टाइगर्स हैं इनके, ये रियल टाइगर्स नहीं है, दे आर वर्चुअल टाइगर्स. सो बिकॉज दे आर prancing across a screen, so there is some sort of screen which is being talked about. So let's see what's that. Another line is bright topaz denizens of a world of green. तो इसमें जो टोपाज है, टोपाज क्या होता है आपको पता होगा, ये एक येलो कलर्ड, मतलब स्लाइटली ऑरेंजिस येलो के शेड में एक जेमस्टोन होता है. ठीक है, सो इट इज़ अ येलो जेमस्टोन. जेमस्टोन तो जानते ही होंगे आप, जो बहुत ही रेयर प्रेशियस जो जेमस्टोन जो होते हैं, है ना, तो वो हो गया टोपाज वो है. एंड डेनिजन्स क्या होते हैं? डेनिजन का अगर वर्ड मीनिंग देखा जाए तो ये होते हैं रेसिडेंट्स. रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि पीपल विच ड्वेल ओवर अ प्लेस, है ना, जो कहीं पे रहते हैं तो वो हो जाते हैं वहाँ के डेनिजन्स या फिर रेसिडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल we are the denizens of India. And then of a world of green, of course a world of green over here
it is it most probably or certainly it means it is talking about a jungle, you know, a world of green. So this where are these tiger residing in inside a जंगल फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, है ना. तो ये एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से आ रहे हैं और दे आर प्रांसिंग अक्रॉस सम स्क्रीन. प्रांसिंग मीन्स जंपिंग, लीपिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रांस जो वर्ड है ना, ये प्रांस जो वर्ड है ये डिनोट कर रहा है एक तरह से लाइवलीनेस को, फ्रीडम को. ठीक है, कि ये जो है दे आर जंपिंग, दे आर फ्री स्पिरिटेड, यू नो, दे आर वेरी लाइवली, दे हैव कम अलाइव. इट्स सीम्स, है ना, कि उनके जो उनको देख के, उनके आंट जेनिफर के टाइगर को देख के ऐसा लग रहा है कि दे आर लीपिंग, दे आर जंपिंग अराउंड एंड दे हैव कम अलाइव एंड दे आर वेरी फ्री स्पिरिटेड, दे आर enthusiastic, they are zealous, they are lively, है ना. So this is what poet wants to convey, है ना, wants to communicate to the minds of the readers. You know, they do not fear the men beneath the tree. So another line is they do not fear the men beneath the tree. So what another attribute of the tigers is being exposed over here, is exhibited over here, is that they are fearless. They do not fear, so they are fearless. They are fearless, है ना, कि उनको किसी चीज़ का डर नहीं है. एंड दे आर fearless of the authority. Actually they are not oppressed by the authority. वो किसी से डरते नहीं है. ठीक है, and they pace in sleek chivalric certainty. So स्लीक का अगर वर्ड मीनिंग देखा जाए तो विथ अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, है ना, कि अगर जिसका एकदम से क्लियर माइंड सेट होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ये बहुत ही, किसी का क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है तो वो कैसे लोग होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं. वो अपने आप में उन्हें पता होता है कि लाइफ में क्या करना है. ठीक है, तो ऐसे जो माइंड सेट के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, स्लीक होते हैं. ठीक है, तो एंड आई होप आप सब स्लीक होंगे, है ना, आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे लाइफ में. तो ये है स्लीक विद अ क्लियर माइंडसेट. और शिवालरिक सर्टेनिटी, अब एक न्यू वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, शिवालरिक. शिवालरिक जो वर्ड है वो शिवालरी से आती है. शिवालरी क्या होती है कि जो जेंटलमैनली एटीट्यूड होता है ना, स्पेशली ये एक ऐसे एट्रीब्यूट है जो मेन पजेस करते हैं ना, तो शिवालरी वो होती है. तो स्पेशली जो मिडिल एजेस होते थे ना, उसमें जो मेडाइवल टाइम्स में जो नाइट्स होते थे, तो उनको वो शिवालरस होते थे. ठीक है, वो शिवालरस होते थे, मतलब उनके अंदर बहुत ही ग्रेस थी, वो कॉन्फिडेंट थे और वो एम्बॉडी करते थे नोबिलिटी को, है ना. तो वो बहुत ही मतलब कर्टियस होते थे, बहुत ही कर्टियस, फुल ऑफ मैनरिज्म, एटिकेट्स होते थे उनके अंदर, बहुत ही जेंटलमैनली एटीट्यूड होता था टुवर्ड्स द लेस प्रिविलेज्ड. ऐसा नहीं था कि वो होते थे, उनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होता था, लेकिन वो उसको इम्पोज नहीं करते थे. स्पेशली वो मतलब अंडर प्रिविलेज्ड के साथ शिवालरस होते थे. और स्पेशली वीमेन के लिए वो बहुत ही शिवलरस, बहुत ही मैनरिज्म शो करते थे, विच इज़ अ क्वालिटी, अ ट्रेट विच इज़ वेरी हार्ड to find these days, unfortunately. So I hope you all are chivalrous and you do exhibit this attribute of yours. So this is what chivalric means. So यहाँ पे अब आपने 4 लाइन देखा कि ये आंट जेनिफर के टाइगर के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ना, ये जो स्क्रीन है, एक्चुअली यहाँ पे आंट जेनिफर के टाइगर की ये जो स्क्रीन है, ये उनका एक एम्ब्रॉयडरी वर्क की बात हो रही है कि वो दे आर सो आंट जेनिफर इज़ जस्ट वीविंग दीज टाइगर्स ऑन अ टेपेस्ट्री, है ना. तो एक फ्रेम जो है उनका, जब हम कोई चीज़ को स्यू करते हैं या फिर कुछ वीविंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक फ्रेम बनी रहती है. ठीक है, तो वो उसी फ्रेम की बात हो रही है, वही वो स्क्रीन है. ठीक है, तो यहाँ पे
स्क्रीन वो है। तो ये जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, ये उनका एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, एंड दीज टाइगर्स दे एग्जिबिट लार्ज अमाउंट ऑफ there is some aura about them, है ना, and they exhibit it seems, है ना, when we look at the tigers, when someone throws a glance at the tigers, they feel that these tigers are very chivalrous, they are sleek, they are confident, they are full of mannerism, they do not fear, they are fearless, and they are fearless of the authority, they are not oppressed by the authority, and they come from a world of green, especially world of green यहाँ पे क्या है, एक जंगल को रेफर कर रहा है। और टोपाज, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, तो ये जो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स है, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि आंट जेनिफर जो है उनके लाइफ में ये सब शॉर्ट कमिंग्स है ना। सो शी इन सब चीज़ों की स्कार्सिटी है। एक्चुअली आंट जेनिफर जो है हमारी, वो बहुत ही मतलब सबड्यूड है, बहुत ही रिस्ट्रेंड लाइफ जीती हैं, और वो मतलब जो अपने वेडिंग बैंड में, मतलब अपने वेडिंग लाइफ के, अपने मैरिटल लाइफ के चैलेंजेस को डील कर रही हैं, है ना, उसके बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, और वो बहुत ही सबड्यूड हैं, सबमिसिव हैं, और उनके वो पावरलेस हैं, ठीक है, और वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है, हेविली डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को वो उनके अंदर ये फीलिंग है, और इस वो जो स्कैर्सिटी है उनके लाइफ में, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो चाहती हैं, जो वो मतलब जो मैनिफेस्टेशन है ना उनके लाइफ का, जो वो चाहती हैं कि ऐसी वो हो, तो उस चीज़ को ये एक तरह से एस्केप मैकेनिज़्म है। ये जो टाइगर इन्होंने बनाया है, ये एक तरह से एस्केप मैकेनिज़्म है कि थिंग्स विच आर अनअटेनेबल इन जनरल, उनके लाइफ में जो चीज़ वो नहीं अटेन कर सकती हैं, नहीं पा सकती हैं, है ना, अनअटेनेबल है, उसको वो अपने आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो उनके आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनका ये जो एम्ब्रॉयडरी पीस है, तो उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो उनका आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, वो उनका आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। और ये आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक एस्केप मैकेनिज़्म है। एस्केप मैकेनिज़्म मतलब क्या हो गया कि यहाँ से उनको जो फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है लाइफ में, जो अनअटेनेबल है उनके लाइफ में, वो उनको इस एम्ब्रॉयडरी वर्क के थ्रू वो उसको एग्जिबिट कर रही हैं, और उसके थ्रू वो खुद को अपने मतलब अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो हैं उनके, और उनके जो क्या कहते हैं, अनरिक्विटेड डिज़ायर जो है ना, उसको वो कैसे पोर्ट्रे कर रही हैं, अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, अपने आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। समझ में आई बात। तो ये एक्चुअली आंट जेनिफर के टाइगर क्या है, एक एम्ब्रॉयडरी पीस है, और उनके जो टाइगर हैं वो दे आर जस्ट इन कॉन्ट्रास्ट, अ स्टार्क, दे ड्रॉ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू आंट जेनिफर्स लाइफ। आंट जेनिफर के जो एट्रीब्यूट्स लैकिंग हैं उनके लाइफ में, जो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेट जो हैं वो मतलब नहीं पोजेस करती हैं, दैट शी इज़ नॉट इन पोजेशन ऑफ, वो उनके जो एम्ब्रॉयडरी से बने हुए जो उनका जो क्राफ्ट्समैनशिप है ना, उनका जो ये जो टाइगर है, ये उस चीज़ को मतलब एक तरह से फुलफ़िल कर रहा है ना। तो ये एक एस्केप मैकेनिज़्म है। जैसे हमने एस्केप मैकेनिज़्म के बारे में द थर्ड लेवल में पढ़ा था कि जो चार्ली था, तो वो एस्केप मैकेनिज़्म वो चाहता था कि दैट ही बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्ल्ड, टू अ बेटर टाइम, है ना, टू अ सिंपलर टाइम इन द ईयर 1894 बिफोर बोथ द वर्ल्ड वॉर्स, है ना। तो वो उस टाइम में खुद को ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, वो उसका एस्केप मैकेनिज़्म था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो स्टाम्प कलेक्शन करता था, तो ये सब उनका जो टेकिंग रेफ्यूज इन समथिंग, इसी चीज़ में जाके मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखना, है ना, कि अपने आप को उस चीज़ से मतलब खुद के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, वो होता है एस्केप मैकेनिज़्म। तो जो उनके लाइफ में जो ऑपरेशन है, जो अलग अलग थीम है जो वो झेल रही हैं ऑन अ डेली बेसिस, है ना, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो लिमिटेशंस उन पे इम्पोज्ड हैं, तो वो सब चीज़ों को
वो कैसे मतलब कॉम्पेंसेट कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो वो कॉम्पेंसेट कर रही हैं जो अनअटेनेबल है उनके लाइफ में, उसको वो कॉम्पेंसेट कर रही हैं अपने आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, अपने एम्ब्रॉयडरी पीस के थ्रू ऑन अ टेपेस्ट्री, है ना। एक टेपेस्ट्री मतलब क्या, जो फ्रेम वर्क है ना, जो फ्रेम जिसमें वो वीव कर रही हैं टाइगर्स को, ठीक है। तो ये जो टाइगर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे टाइगर एक मेटाफर है। एक्चुअली टाइगर किस चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। सो टाइगर इज़ अ मेटाफर हेयर। ये सिंबलाइज कर रहा है स्ट्रेंथ दैट शी लॉन्ग्स फॉर, दैट शी यर्न्स फॉर, है ना। वो स्ट्रेंथ जो इनके लाइफ में इनके पास नहीं है, ठीक है। शी इज़ being subjugated to all sorts of oppressions in her life, है ना, on a daily basis। तो ये जो टाइगर है ना, उनके ये एकदम शार्प कॉन्ट्रास्ट में है। दे आर अनलाइक आंट जेनिफर, दे आर वेरी लाइवली, दे आर बोल्ड एंड दे आर कॉन्ट्रास्टिंग टू आंट जेनिफर्स लाइफ, है ना। तो ये है मतलब फर्स्ट स्टांजा का अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखें तो यही है। एंड टाइगर्स आर वाइल्ड, दे आर फ्री स्पिरिटेड, दे आर इंडिपेंडेंट, अनलाइक आंट जेनिफर। बिकॉज आंट जेनिफर जो है बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करती हैं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के, जस्ट अपोजिट हैं वो, है ना। तो ये फर्स्ट स्टांजा है हमारा। सो वी विल ऑल्सो बी डीलिंग विथ अनदर स्टांजा नाउ। Coming to the second stanza of the poem, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So, first of all, Aunt Jennifer's fingers fluttering. Fingers fluttering, what is the poetic device here? Repetition of the consonant sound f, it is alliteration, है ना। alliteration है poetic device की बात करें तो। और फिर fluttering through her wool, so she is weaving, she is making the embroidery, है ना। so her hands, her fingers are actually fluttering. Fluttering means they are shaking, they are trembling, they are trembling. It shows that she has anxieties, that she has some anxieties in her life. She has trepidations, है ना। trepidations, there are certain vocabulary, you know, which you need to यूज़ व्हेन यू आर डीलिंग विथ एनी पर्टिकुलर चैप्टर। तो उसकी कुछ एक अपनी एक सेट वोकेबलरी होती है कि जैसे ट्रेपिडेशन का मतलब होता है कि एंग्जाइटीज़ जो होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि आंट जेनिफर जो है उनके लाइफ में क्या है, एंग्जाइटीज़ है। हर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, ऑब्वियसली यहाँ पे एलिटरेशन का यूज़ किया है तो ये और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है, और ये मतलब उनकी एंग्जाइटी को और भी क्लियरली ये मतलब एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। तो फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, तो वो जो उनकी एम्ब्रॉयडरी वर्क है, in the process when she is weaving through her embroidery, her fingers are fluttering. Why are they fluttering? Because she is full of anxieties. She has a lot of trepidations in her life. And what is the cause of the trepidations? Because she is being constantly being subjugated to, constantly being victimized, है ना। वो एक विक्टिम है। वो किस चीज़ की विक्टिम है? विक्टिमाइज्ड, है ना। कॉन्स्टेंटली बीइंग सब्जुगेटेड टू पेट्रियार्की, है ना, पेट्रियार्कल डोमिनेंस। तो पेट्रियार्की हमने पहले इस वर्ड से डील किया है अभी फ़िलहाल, है ना, जब हम इसके थीम्स के बारे में बात कर रहे थे, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द themes that the poem explores. So patriarchy, so she is
अ विक्टिम, है ना, वो विक्टिम मतलब वो एक वो पीड़ित है ना, वो मतलब किस चीज़ की विक्टिम है? पेट्रियार्की की, ठीक है। तो और पेट्रियार्कल डोमिनेंस की इनफैक्ट, और फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। नाउ यू सी, आइवरी पुलिंग एन आइवरी निडल, इट इज़ अ इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ईजी, है ना, बहुत ही ईजी है, द सिंपलेस्ट ऑफ टास्क, है ना, इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ टास्क, बट आंट जेनिफर फाइंड्स इट टू डिफ़िकल्ट, है ना। तो ये आंट जेनिफर के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बात हो गई। मतलब इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बिकॉज ऑफ हर एंग्जाइटीज़, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट trepidations that she is being subjugated to, she finds the simplest of tasks, rudimentary tasks जिसको कह सकते हैं ना, rudimentary। देखिए एक और वर्ड है, rudimentary का मतलब होता है बहुत ही बेसिक, है ना। तो rudimentary task जो है उसको भी ये क्या मतलब कैसा फील कर रही हैं कि ये बहुत ही उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया है। इट हैज़ बिकम एन अ हरक्यूलियन टास्क फॉर हर, है ना। हरक्यूलियन टास्क, यू नो, हरक्यूलियन का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, इम्पॉसिबल टू अचीव, वैसा हो जाता है। तो इनके लिए सिंपलेस्ट टास्क क्या हो जाता है? हरक्यूलियन टास्क बन जाता है, रूडिमेंट्री टास्क, ठीक है, बेसिक। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक अगेन। सो this is what has become of Aunt Jennifer. Means these is what she is being subjugated to on her in her marital हाउसहोल्ड, है ना। तो वो अपने मतलब मैरिड लाइफ के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उसके जो चैलेंजेस हैं, उसको ये ऐसे डील कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब उनके लाइफ में, और वो ये जो कोपिंग मैकेनिज़्म है, ये जो उनका एम्ब्रॉयडरी है ना, ये एक्चुअली उनका एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, थिंग्स विच आर अनअटेनेबल इन हर रियल लाइफ। शी इज़ इट इज़ काइंड ऑफ escape mechanism, इट इज़ काइंड ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज्म। जो वो अनअटेनेबल है उसको वो कॉम्पनसेट करती हैं अपने आर्टिस्टिक स्किल्स के थ्रू, अपने आर्ट वर्क के थ्रू, ठीक है। सो शी फाइंड्स इट वेरी आइवरी निडल वेरी हार्ड टू पुल। तो सिंपलेस्ट ऑफ टास्क हैज़ बिकम द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वंस फॉर हर, ओविंग टू हर एंग्जाइटीज़, कॉन्स्टेंट फियर, कॉन्स्टेंट ट्रॉमा दैट शी इज़ बीइंग सब्जुगेटेड टू, है ना। ट्रॉमा, उनके लाइफ में बहुत ट्रॉमा है, ठीक है। तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, शी सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब आप देखिए कि यहाँ पे वेडिंग बैंड की तो बात हो रही है, अब आप बताइए मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब किसी की वेडिंग बैंड, जो वेडिंग रिंग होती है ना, ये सिंबॉलिक होती है कि कोई मैरिड है तो उसकी ये सिंबॉलिक होती है, तो वेडिंग बैंड पहनते हैं लोग। तो ये जो इसका मैसिव वेट कैसे हो सकता है एक बैंड का? आपको क्या ये मतलब लिटरली ये पॉसिबल है कि ये इसका एक मैसिव वेट होगा? नहीं, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा एग्जाजरेशन है। तो अगर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो ये क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल आपको पता होगा कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, है ना, ताकि वो मतलब एक तरह से पोएटिक ब्यूटी है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो एम्बेलिशमेंट है, मतलब एडॉर्नमेंट्स हैं पोएम की, है ना, वो उसको ब्यूटिफाई करती हैं। तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। सो अंकल्स वेडिंग बैंड का यहाँ पे क्या मतलब है? अंकल का जो वेडिंग बैंड है वो एक तरह से सिंबॉलिक है कि उनका जो मैरिड लाइफ के जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं ना, वो जो है दैट इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली शोल्डर्ड अपॉन हर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, द डेली hustle and bustle of her married life that she has to cater to, है ना, she has to cater to the needs and desires, fulfillment of the desires of each and every individual in the household, and keeping aside her own dreams, her own aspirations, है ना। तो उसको वो उनको साइडलाइन करना पड़ रहा है, जो कि एक जनरल हाउस होल्ड में हम देखते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना। तो ये जो मैसिव वेट है अंकल के वेडिंग बैंड की,
ये मतलब क्या है, एक तरह से मेटाफर है। वेडिंग बैंड एक्चुअली, और पोएटिक डिवाइस की बात करें तो वेडिंग बैंड यहाँ पे एक तरह से वो कॉन्स्टेंट्स मतलब ऑफ अ मैरिड लाइफ है ना, चैलेंजेस ऑफ मैरिड लाइफ, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और जो अंकल है, अंकल ऑब्वियसली यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया है कि अंकल क्या है, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट के हैं जो उनके हस्बैंड हैं आंट जेनिफर के, और वो उसके मैसिव वेट में है ना, उसमें वो आंट जेनिफर जो है उसके इंट्रिकेट लोर में है ना, उसके कॉम्प्लिकेशंस में वो पूरी तरह से उलझ गई है ना। तो ये जो मैसिव वेट क्या है, ये अंकल के वेडिंग बैंड की नहीं, एक्चुअली उनके मैरिटल हाउस होल्ड में जो डेली लाइफ के जो हसल बसल हैं, जो 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 कांस्टेंट चैलेंजेस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं दैट शी हैज़ टू कॉन्स्टेंटली डील विद ऑन अ डेली बेसिस, वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मेटाफोरिकल वे है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। और अगर बात करें तो ये हमने बोला कि अगर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो ये हाइपरबोल है। हाइपरबोल मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेट करके जो हम बातें करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी हम कहते हैं ना, शी क्राइड एन ओशन ऑफ टीयर्स, कोई थोड़े ना ओशन रो सकता है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं ना, शी क्राइड एन ओशन ऑफ टीयर्स, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत रोई है ना। तो मतलब वो एक तरह से एक बताता है कि वो कितना मतलब उसका इम्पैक्ट बताने के लिए इस तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंड देन वी हैव सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो आंट जेनिफर्स हैंड नॉट एक्चुअली मतलब आंट जेनिफर्स हैंड कौन सा, वेडिंग बैंड की बात हो रही है ना। तो वो क्या है कि उनके लाइफ में मतलब जो आंट जेनिफर जो है ना, बेसिकली एक विक्टिम है, शी हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ ऑल दिस ऑफ पेट्रियार्की, ऑफ मेल शॉविनिज्म, है ना। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस सिट्स हेविली, वो बहुत ही मतलब बुरी तरीके से है ना, शी हैज़ बिन subjugated टू ऑल दिस। तो इसकी बात हो रही है। कमिंग टू द लास्ट स्टांजा ऑफ द पोम, when aunt is dead her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So the very last stanza, it ends on quite a disappointing note, because we see um, we witness Aunt Jennifer's demise, and when Aunt is dead, her terrified hands will lie. So her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. You see, when one line is jumping over to another without use of any punctuation mark over here, we don't see any punctuation mark over here in the very first line of the stanza, and then directly we come to the another line. So it the poetic device is enjambment, इसको हम enjambment कहते हैं, ठीक है, enjambment, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे आप देखिए कि when aunt is dead her terrified hands will lie, still ringed with the ordeals she was mastered by, है ना। तो अभी जो उनके टेरिफाइड हैंड्स हैं, वाई आर हर हैंड्स टेरिफाइड, यहाँ पे टेरिफाइड हैंड्स जो है ना, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मतलब डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, still ringed with ordeals she was mastered by. So even after when her death, you know, when Aunt Jennifer is no more, when she passes away, even then her the ordeals क्या होते हैं, जो challenges होते हैं ना, जो टेस्ट होते हैं ना, कहते हैं ना स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। ऑर्डेल्स का मतलब होता है
challenges, tests, है ना, that life has to throw, है ना, which we need to undergo in our life, है ना, and there is no alternative to that. We don't have options, है ना, it is not skippable, we cannot skip it. So these are the ordeals, the challenges which Aunt Jennifer faced in her life, in her married life, and her terrified hands will lie. So her terrified hands, her hands are still terrified even after her death. They are the terrified hands क्यों कह रहे हैं? Because उनका जो मतलब कॉन्स्टेंटली जो वो ट्रेम्बल करता था, इट वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रेम्बलिंग, इट वॉज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ fear and anxiety, and her fingers were fluttering. So her terrified hands will lie still ringed with the ordeals she was mastered by. So अभी जो उनके हैंड में जो एक यहाँ पे रिंग का डुअल मीनिंग है, ठीक है, दो मीनिंग यहाँ से निकल पाएगा. एक रिंग तो जो उनकी वेडिंग रिंग की बात हो रही है, वेडिंग रिंग है ना, जो कि सिंबलाइज करता है मतलब उनके वेडिंग मतलब उनके मैरिड लाइफ को, ठीक है, वेडिंग रिंग की बात हो रही है. वन रिंग इज वेडिंग रिंग, अनदर वन इज द कॉन्स्टेंट द एंडलेस साइकिल ऑफ ऑपरेशन, है ना. तो जो साइकिल है ना, उस रिंग की भी बात हो रही है. कौन सा साइकिल? कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ ऑपरेशन. जो ऑपरेशन वो अपने लाइफ में डेली बेसिस पे झेल रही थी ना, दैट शी हैड टू बेयर, है ना, इन हर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस. सो दैट रिंग, है ना, उसका साइकिल, वो रिंग, है ना, तो वो उसकी बात भी हो रही है. तो साइकिल ऑफ ऑपरेशन स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स she was mastered by. She was mastered by because she was subdued, you know. She had to surrender to all this atrocities कह सकते हैं, ठीक है. तो mastered by मतलब she had to give in, she had to surrender to all these atrocities of patriarchy. Surrender to the atrocities. atrocity का क्या मतलब होता है? atrocities means जो ट्रॉमा है, जो पेन है ना, जो constant struggle है उनके लाइफ की, उसकी बात हो रही है, ठीक है. she was mastered by the tigers in the panel that she made. in the panel, the embroidery piece, of course, the frame, है ना, जो टेपेस्ट्री थी जिसमें उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, उस पैनल की बात हो रही है. तो टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड. सो दीज आर जस्ट देयर इज़ अ juxtaposition दैट इज़ बीइंग ड्रॉन हियर. मतलब कि ये एक तरह से क्या है, एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे सेट हो रहा है आंट जेनिफर और उनके जो टाइगर्स हैं, मतलब जो मेटाफर हैं. टाइगर एक्चुअली सिंबलाइजिंग फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ, लाइवलीनेस, हाई स्पिरिटेडनेस, या फिर कह सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब दे आर अनलाइक आंट जेनिफर. दे आर जस्ट एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, है ना. ये जो टाइगर्स है ना, ये एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के, ठीक है. तो ये जो टाइगर्स है ना, इवन आफ्टर आंट इज़ डेड, इवन व्हेन शी इज़ नो मोर, द टाइगर्स इन द पैनल विल गो ऑन prancing. तो ये जो है ना, उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आंट की जो लेगेसी है ना, उनकी जो लेगेसी क्या है, उनके जो मतलब अर्नेस्ट डिज़ायर्स थे, जो कि कभी वो उनको वो एग्जिबिट वोकली नहीं कर पाई, बट अपने आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो कर गई, है ना. तो आंट्स लेगेसी इट रिप्रेजेंट्स हर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, है ना, दैट शी कुड possess, that she could be in possession of, but unfortunately it was
इट वॉज डेस्टिन्ड टू गो अनसेटिस्फाइड, है ना, तो फिर उनको नहीं मिल पाता है वो, ठीक है। और कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू एम्बॉडी हर, मतलब ये जो दे विल गो ऑन प्रांसिंग, बिकॉज वंस यू हैव मेड समथिंग, सम आर्ट वर्क, इट विल लिव टिल इटर्निटी, इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, है ना। और इवन आफ्टर द पर्सन इज़ नो मोर, है ना, तो उनके जो टाइगर्स हैं ना, दे विल गो ऑन प्रांसिंग, दे विल ऑल बी द सेम, है ना, इवन आफ्टर हर डिमाइस, इवन आफ्टर शी इज़ नो मोर। तो इट विल कंटिन्यू टू एम्बॉडी हर इनर स्पिरिट, उनके अंदर की जो स्पिरिट थे ना, उनके अंदर ये जो वो कभी मतलब एग्जिबिट नहीं कर पाई, लेकिन ये उनके इनर मोस्ट स्पिरिट को ये कहीं ना कहीं शोकेस करते रहेंगे, दीज टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स, है ना। दे विल गो ऑन प्रांसिंग एंड दे विल बी प्राउड, दे विल बी अनअफ्रेड, अनलाइक आंट जेनिफर who was quite who had quite contrasting traits, है ना। तो ये उस बात को मतलब पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं पोएट जो है, इस चीज़ को कॉन्वे करना चाह रहे हैं टू द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, एंड the resilience that Aunt Jennifer had, that the constants, the challenges that she had to undergo on a daily basis, ठीक है, and this endless cycle of oppression, ठीक है, इसको ये मतलब अभी वो एम्बॉडी करेंगे, वो करते रहेंगे एम्बॉडी टिल इटर्निटी, इवन आफ्टर हर डेथ, इवन आफ्टर व्हेन आंट जेनिफर इज़ नो मोर, her tigers will go on representing her legacy, you know, her inner yearnings, her desire, her inner spirit, her desire for freedom actually, which she could not be in possession of, unfortunately, है ना। तो with this the poem is complete, and let us meet in our next session. Thank you.